A very good morning to all of you. I am Anita Malik from Doon Valley Institute of Pharmacy and Medicine, Karnal. Today I am here to discuss on the topic classification of drugs. So first of all, I want to tell you about the crude drugs. What are crude drugs? Crude drugs, these are obtained from directly from the plants. जो हमें plant से directly मिलते हैं उन्हें हम crude drugs बोलते हैं. Plants, animals or their parts which after collection are subjected only to drying and size reduction if needed and they exist in natural form. क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं जिनको हम नेचुरली प्लांट्स या एनिमल से ले लेते हैं, उनके ऊपर हम फर्दर कोई भी केमिकल प्रोसेसेस नहीं करते हैं एक्सेप्ट ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन. या तो बस ड्राइंग प्रोसेस होता है या फिर साइज रिड्यूस करना होता है हमें, बिकॉज अगर हम पैकेजिंग करवा के उसको मार्केट में ला रहे हैं तो साइज शुड बी रिड्यूस. एंड क्रूड ड्रग्स कैन बी डेराइव फ्रॉम द वेरियस नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा. सो नाउ वाई देयर इज़ ए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. एज मैंने अभी आपको बताया कि हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन. सो वाई, वट इज़ द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन? यू शुड नो दिस. Because of their wide distribution, the arrangement of classification in definite sequence is necessary to understand easily. Because हमारी जो क्रूड ड्रग्स हैं वो इतने वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है तो उनको हमें लर्निंग करने के लिए, उसकी नॉलेज के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. तो इसके लिए स्पेशल एक कुछ ना कुछ मेथड होना चाहिए जिससे हम इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकें. तो हमने बहुत सारे हमारे मेथड्स हैं, बट ईच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. उनके क्या हैं, हर एक के एडवांटेज कह सकते हो आप, डिसएडवांटेजेस हैं. बट फॉर द पर्पस ऑफ द स्टडी द ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज. ताकि हमारी स्टडी ईजी हो पाए इसलिए हमने बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स रखे हैं. लाइक फर्स्ट वन इज अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट सेकेंड मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, pharmacological classification, chemical classification, chemotaxonomical classification, and now there is a new method of classification that is known as the serotaxonomical classification. So in total there are 7 methods of classification, and now I'm going to tell you about each one of them with its merits and demerits. So first of all, start with the alphabetical system of classification. As it is clear from its name, alphabetical means in this crude drugs are arranged according to their names on the basis of the alphabets. Like similarly in the case of dictionary, like आपने सबने डिक्शनरी देखी होगी, उसमें कैसे होते हैं नेम्स from A to B to C. Likewise in this also in alphabetical system we follow different pharmacopoeias. Like in Indian pharmacopoeia you have seen the drugs are arranged according to the alphabetical their names. Like for A for acacia, B for benzoin, you have to find C clove. You can directly come off the page of the C. So in this system of classification, crude drugs are arranged according to the alphabetical order, according to their Latin or English names. Some of the pharmacopoeias and reference books we have which classify crude drugs according to this system are as follows. Like Indian Pharmacopoeia, IP, in 1955 it was firstly introduced, then Indian Pharmacopoeia 1966, BP is for British Pharmacopoeia, USP is for United States of Pharmacopoeia, and European EP is European Pharmacopoeia. Now coming to its advantage and disadvantage, or you can say merits and demerits. Advantage is this, that alphabetical system is a very simple method. In this system of classification you can easily locate your drug, trace your drug, and addition of the drug is also very easy, and no technical person is required for handling the system. Like अगर किसी को भी ABC आती है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई टेक्निकल उसकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. तो कोई भी पर्सन अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी ड्रग को फाइंड कर सकता है फार्माकोपिया में. सो ये दीज आर द एडवांटेजेस. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज अब क्या है इसमें, साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड वेदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. अब इस मेथड में मैंने अभी आपको बताया ड्रग्स कैसे अरेंज होती हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फ़ाबेट्स. लाइक ए वाली ड्रग आंवला है तो वो पहले आएगी, बी वाली ड्रग बहेड़ा है तो वो बाद में आएगी. बट आपको अब ये नहीं पता चल रहा है इसमें वेदर योर ड्रग इज़ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज मीन्स कौन सी हमें डायरेक्टली पार्ट ऑफ द प्लांट से मिल रही हैं, और अनऑर्गेनाइज कौन सी इनडायरेक्टली मिल रही हैं.
So this is one of the main disadvantage of this system. And secondly, this system does not help in distinguishing the drugs of the plant, animal or mineral source. Means original source is not clear in this. For example, अगर आपको दिया हुआ है ड्रग आंवला और एक साइड दिया हुआ है हनी, तो आप इससे आपको ये नहीं पता चल रहा लाइक आंवला इज ऑफ प्लांट सोर्स और हनी इज ऑफ एनिमल सोर्स, बट आपको बस इतना पता चल रहा है ए में आपको आंवला मिलेगा और एच में हनी मिलेगा, तो सोर्सेज इज नॉट क्लियर. सो दिस इज द डिसएडवांटेज. Now coming to the examples of this system, A for acacia, agar, benzoin, then B, C, cinchona, cinnamon, D, digitalis, E for ephedra, F for fennel. Complete ABC आपको लिखनी है but with the crude drugs. Fennel, ginger, honey, isabgol, jalap, quino, linseed. M for mustard, N, nutmeg, O, opium, P, podophyllum, Q, quassia, R for Rauwolfia, S, senna, Ancaria gambia, Vasaka, Woolfed, yellow beeswax and zeodary. These all are our crude drugs. Means ये हमारी सारी के सारी drugs जो मैंने अभी नाम लिए हैं सब plant based हैं. Next coming, this is all about the alphabetical system. Now coming to the second system of classification method, that is the morphological classification method. In this system of classification, crude drugs are arranged or you can say grouped according to their parts of the plant or the animals, represented into organized drugs and unorganized drugs. इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी, मीन्स कौन से पार्ट से जोन सी ड्रग्स आपको फ्रूट पार्ट से मिल रही हैं प्लांट के वो अलग डिवाइड होती हैं, उनको अलग लिखा जाता है. लीफ से मिल रही हैं तो वो अलग आएंगी, बाग से मिल रही हैं. मीन्स प्लांट के जो भी पार्ट्स होते हैं फ्रॉम द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, अकॉर्डिंगली हमने इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अपनी ड्रग्स को क्लासीफाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है और यू कैन से ग्रुपिंग की हुई है हमने अकॉर्डिंगली. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. अब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं, इनको सेलुलर ड्रग्स भी बोला जाता है और अनऑर्गेनाइज्ड को एसेलुलर. Organized drugs, these are the drugs which are obtained direct parts of the plant and are divided into leaves, bark, wood, roots, rhizome, seed, fruit. मतलब अभी मैंने जो आपको बताया था प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं आपको दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर आपने ड्रग्स को डिवाइड किया है तो वो सब किस कैटेगरी में आएंगी, ऑर्गेनाइज्ड. एंड ड्रग्स are the products of the plant, animals and mineral source, and they do not consist of the parts of the plant, are obtained from natural source by the variety of extraction procedures. जो ड्रग्स हमें डायरेक्टली नहीं मिलती हैं प्लांट के पार्ट से, बट कैसे मिल रही हैं वो हमें कोई ना कोई हमने प्रोसेस किया है. जैसे रेजिन्स हैं, वो क्या है, गमी एक्सुडेशंस हैं, जूसीज हैं, ये सब क्या है हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं बट हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ रहा है लाइक एक्सट्रैक्शन का. सो उनको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. एंड दे आर डिवाइडेड इनटू ड्राइड लेटेक्स है, जैसे आपने देखा होगा किसी भी फॉर एग्जांपल ओपियम का है प्लांट, आपके उसके कैप्सूल्स पर इंसीजन्स करें, कट लगाया, उसके अंदर से मिल्की फ्लूइड निकलता है, तो डैट इज़ अ ड्राइड लेटेक्स. ड्राइड जूस, सिमिलरली ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स हैं, गम्स हैं, रेजिन्स हैं, ऑयल्स, फैट्स, विक्सेस, वॉलेटाइल ऑयल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स से में जो मिल रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं. अब कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के, जो हमें सेलुलर ड्रग्स भी बोलते हैं हम, जिनको लाइक लीव्स में प्लांट के पार्ट्स दिए हुए एक साइड एंड ऑन द सेकेंड other side drugs are mentioned accordingly. For example, first category is leaves. We can say Datura is an example of leaves. Senna leaves are used as a laxative. Datura leaves are also used in the nervous system. Then Vasaka leaves are antitussive. Digitalis leaves used as a कार्डियोटॉनिक ड्रग. सिमिलरली बार्क्स हैं, बार्क नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्लांट का. सिनेमन की बार्क हम यूज़ करते हैं, दालचीनी की. देन वुड है, इसमें सैंडलवुड आप सबने सुना होगा, रेड सैंडल्स है. देन रूट्स हैं, मुलेठी की आप सबको पता है रूट्स यूज़ करते हैं हम, अगर सोर थ्रोट है तो इपेकैक की रूट यूज़ करते हैं, रावोल्फिया की रूट यूज़ करते हैं. देन राइजोम्स हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं उनको राइजोम्स बोलते हैं. जिंजर है, उसमें पोडोफाइलम है. टर्मरिक, जिंजर इज़ अदरक, टर्मरिक हल्दी, कॉमन नेम्स हैं ये उनके जिनके हम राइजोम्स यूज़ करते हैं. देन फ्लावर्स में क्लॉव आएगा आपके, लॉन्ग, सेफ्रन, केसर, पायरेथ्रम. देन सीड्स हैं लिंसिड के,
अलसी, देन नक्स वोमिका के सीड्स यूज़ होते हैं, ईसबगोल के सीड्स यूज़ होते हैं। फ्रूट्स में फेनल है हमारा जो सौंफ है, कोरिएंडर धनिया है, डिल है। देन स्टेम्स में अफेड्रा आएगा। हेयर्स एंड फाइबर्स में कॉटन के हेयर्स होते हैं वो हेम्प एंड जूट। नाउ कमिंग टू द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज एसेलुलर। ये डायरेक्टली हमें नहीं मिल रही है बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें मिलती हैं। तो उनकी कैटेगरीज हम कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट वन इज ड्राइड लेटेक्स है, ओपियम एंड पेपेन। पेपेन इज फ्रॉम पपाया, opium from Papaver somniferum, that is अफीम. Then dried juice, aloe vera juice, quinoa juice, dried extracts, agar, catechu, pectin. गम्स का एग्जाम्पल आपके अकेशिया गम एंड ट्रैगेगेंथ गम जो कीकर से मिलती है और गोंद कतीरा. देन रेजिन, बेंजोइन, हींग इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेजिन. जो हींग आप यूज़ करते हैं घर में, डैट इज एसाफोइटिडा. देन फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स, कैस्टर आएगा इसके अंदर, कैस्टर ऑयल, वेक्सीज आएंगी, ये सब फैट्स के अंदर है. देन वॉलेटाइल ऑयल्स में क्लोव, लौंग है जो हमारी, सिनेमन है, कोरिएंडर है, ये सब में वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट्स होते हैं. देन एनिमल प्रोडक्ट में बीज वैक्स है, शार्क लीवर ऑयल है, जेलेटिन है. मिनरल्स में बेंटोइन, क्योलिन एंड टैल्क है. नाउ कमिंग टू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम. एडवांटेज क्या है इस सिस्टम का? दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर कन्वीनियंट फॉर द प्रैक्टिकल स्टडी. आपने अभी देखा ही है, जैसे हमने अभी इसमें क्या किया, ड्रग्स को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स. तो इसमें हम प्रैक्टिकल स्टडी अगर किसी को करनी है तो बहुत ईजी है, स्पेशली व्हेन द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड. आपको केमिकल नहीं पता चल रहा है बट अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी आप स्टडी कर सकते हो उस ड्रग के बारे में. एंड दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द एडल्ट्रेंट्स यूज. एडल्ट्रेंट्स क्या है? अब जो भी कोई मिलावट अगर किसी ने की है, फॉर एग्जाम्पल यू नो कि आपको कार्डमम के हम क्या फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, फैनल का फ्रूट है या सिनेमन की बार्क यूज़ कर रहे हैं और वो कैसी दिखती है, आपको अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी आप पहचान सकते हैं. अगर उसके अंदर कोई भी एडल्ट्रेशन हुई है, कोई भी मिलावट हुई है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेज. अब डिसएडवांटेज में क्या है कि इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस का हमें इसमें नहीं पता चल रहा है. हमें क्या पता चल रहा है? अकॉर्डिंग देयर मॉर्फोलॉजी. सेकेंड डिसएडवांटेज इज दैट व्हेन डिफरेंट parts of the plant contain different chemical constituent, it is difficult to classify them. It means, for example, different parts of the plant. एक plant है, उसके आप लीव्स भी यूज़ कर रहे हैं, बार्क भी यूज़ कर रहे हैं, या उसका कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप किस कैटेगरी में आप डालोगे? लाइक मॉर्फोलॉजी में हमने बताया था आपको, ये फ्रूट्स में भी आ सकता है, लीव्स में भी आ सकता है, तो आप किस कैटेगरी में डालेंगे उनको? सो इसमें क्या होगा आपका, जैसे नीम का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी. नीम के हम लीव्स यूज़ करते हैं, ठीक है. नीम की हम बार्क भी यूज़ करते हैं, दातुन में जैसे यूज़ करते हैं. फेस वॉश भी इसका यूज़ होता है. सिनेमन भी ऐसे ही है, बार्क भी उसका. आंवला है, आंवला के फ्रूट भी यूज़ होते हैं. उनके मल्टीपल यूजेस हैं और बहुत सारे उनके, जो एलोवेरा है, जो सारे पार्ट्स उसके प्लांट्स के यूज़ होते हैं. तो इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है प्लांट को क्लासीफाई करना, आप किस कैटेगरी में आपको रख सकते हो आप ड्रग को. सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. सो अभी हमने कवर कर लिया दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस other methods of classification. So thanks for watching the video.